بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آج 10 شوال المکرم ہے 1272 ہجری بمطابق 14 جون اور 1856 سن عیسوی آپ کی ولادت باسعادت محلہ جسولی بریلی شریف انڈیا کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد ہوئی، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت مولانا تقی علی خان اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت مولانا رضا علی خان تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ ہے کریمہ میں نے پڑھی ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں وہ علماء ہیں جو خوف الہی سے ڈرنے والے ہیں، اور ایک مقام پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، اور میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوں گے۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے بارے میں کہ چاہے زمینی ہوں چاہے آسمانی ہوں، اور زمین پر چلنے والی چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر اپنے علم کی روشنی کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے مراد علماء کرام کی ذات ہے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا، اور جو مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ کسی عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے یہ فرزند جن کا نام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رکھا، اور آپ بہت بڑی شخصیت تھے، آج پوری دنیا کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، اور 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو پڑھ لیا تھا، اور 14 سال کی جیسے علوم آپ کی عمر ہوئی آپ نے دیگر علوم سے آپ فارغ ہو گئے تھے، اور آپ نے فتاوی جاری کر دیا تھا۔ اور پھر آپ جب حج بیت اللہ کے لیے گئے، آپ نے حج پڑھا، اور پڑھنے کے بعد در رسول پہ چلے گئے۔ آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو،
और काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबे तो देखो। आओ हाजियों, शहंशाह का रोज़ा तो देखो, और काबा तो देख चुके हो, और अब काबे का काबा देखो। इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के दरबार में आप पहुँचे तो कई दिन गुजर गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात न हुई। तो आप हुजूर के दरबार में खड़े होकर एक नात गुनगुना रहे थे, और हुजूर के दरबार में एक नात पढ़ रहे थे कि आका मेरे जैसे हजार शहदार, हजार कुत्ते आपके दरबार में फिरते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो उस वक़्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी और आपकी मुलाकात ना हो जाएगी। तो उसी रात इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि मैं हुजूर की चौखट पर सर रखकर सो गया और मेरी किस्मत जागी, ख्वाब में मदीने के ताजदार आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम अहमद रज़ा खां बताओ। तो हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि मुझे कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, जिस दिन से हुजूर का दीदार मुझे नसीब हुआ मेरी ज़ुबान पर नाते नबी जारी हो गई थी। तो हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने 1000 कुतब कमो पेश लिखी, 1000 कुतब, और जिनके अंदर सबसे पहले आपने कुरान करीम का तर्जुमा जो किया कंजुल ईमान शरीफ के नाम से। आज भी पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा जो है, जिसको कंजुल ईमान शरीफ कहते हैं, यानी ईमान का जो मगज़ है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। आज भी हम अपनी बेटियों की जब शादियां होती हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उस मौके पर अपनी बेटी को कुरान करीम का एक तोहफ़ा दिया जाए। बतौर जिस तरह जहाज़ में दीगर चीज़ें हम देते हैं, हम कुरान करीम का भी तोहफ़ा देते हैं, और कुरान करीम का वो तोहफ़ा देते हैं जिसका तर्जुमा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। अब आपको एक मिसाल देकर मैं समझाता हूँ कि आप देखें बहुत सारी तफसीरें मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों ने तफसीरें की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से। हर एक की तफसीर में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा कि शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ, जबकि मेरे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के अलिफ से पहले तो किसी चीज़ का वजूद नहीं था, शीन का वजूद कहाँ से आ गया। और इमाम अहले सुन्नत ने जब इस बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा किया तो आपने क्या कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। दीगर कुरान मजीद की जो तफसीरें हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि तर्जुमा इस तरह शुरू है कि हम अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा किया है आपने यहाँ से शुरू किया है कि अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और बड़ा ही रहीम है। और इसी तरह हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने आपने फतावा शरीफ लिखा जिसकी 30 जिल्दें हैं, कमो पेश 2000 या 2200 सफ़हात के ऊपर वो मुश्तमिल है फतावा, जिसके अंदर कुरान, आदीस, फ़िक़्ह, तारीख़, अइम्मा, मंतक, दीगर बुज़ुर्गान दीन से हर चीज़ को अच्छे तरीके से इमाम अहले सुन्नत ने साबित किया है। और आपने उस फतावा है रज़विया के अंदर कोशिश ये की है कि अल्लाह का कुरान या मुस्तफ़ा की ज़ुबान से लोगों के मसलों का हल किया जाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी आज के दिन 10 शव्वालुल मुकर्रम आपकी विलादत का दिन है और पूरी दुनिया के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत की 65 साल ज़िंदगी हुई और आपने 65 साल ज़िंदगी के अंदर 1000 कुतब लिखी, और जब 65 साल ज़िंदगी को आप तकसीम करते हैं तो यूँ महसूस होता है कि हर 5 घंटे बाद इमाम अहले सुन्नत ने एक किताब को तैयार कर दिया था। और आप
खौफ इलाही आपके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पूरे वजूद में लोग इस तरह आपको देखकर खड़े होकर आपका दीदार करते थे। आपके चेहरे का, आपका चलना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, ये तमाम चीज़ें जो है मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक थी। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी ज़िक्र इलाही, इत्तिबाह मुस्तफ़ा के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर किया है। और आप एक दिन मौज में आकर फरमाने लगे कि लोगों, अगर मेरे जिस्म से मेरा दिल निकाला जाए और उस दिल के दो टुकड़े किए जाएं, एक टुकड़े से ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी आवाज़ आएगी और एक टुकड़े से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ आएगी। ये शान थी मेरे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की। और आपने सारी ज़िंदगी खौफ इलाही के साथ साथ इश्क़ रसूल की कमाई की और दुनिया के अंदर इश्क़ रसूल को तक़सीम किया। और आपने हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का आप इस कदर एहतराम किया करते थे। आपको कोई आले रसूल मिल जाता, आप उसके आगे ना चलते, आप उसको आगे चलाते। आले रसूल आपकी बारगाह में आ जाता, आप उसको नीचे ना बिठाते, आप उसको अपनी कुर्सी के ऊपर बिठाते। एक मर्तबा आप बीमार हो गए तो आपने लोगों को कहा कि भाई मुझे पालकी में फ़लाँ जगह लेकर जाओ। जब लेकर जाने लगे, उन मज़दूरों के अंदर एक सैयदज़ादा भी था। अब उस सैयदज़ादे ने जब आला हज़रत को कंधों पर उठाया, अभी चंद कदम चले ही थे, आपने कहा भाई नीचे रख दो। और नीचे रखने के बाद आपने चारों साथियों के बारी बारी जिस्म सूंघे और सूंघने के बाद जो आले रसूल था, जिसके जिस्म से खून रसूल की खुशबू आ रही थी, जो हुजूर के घराने का एक चश्मो चराग था, आला हज़रत ने उसके कदमों में अपना सर रख दिया और अपनी दस्तार को उतारा और उतार कर उसके कदमों में रख दिया और कहा कि क़यामत के दिन जब आपके नाने ने ये पूछा कि मेरे नवासे के कंधों पर सवार हुए हो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, तो उस वक़्त मैं क्या जवाब दूंगा। उस मज़दूर ने कहा कि हुजूर मैं तो मज़दूरी करने आया हूँ, मैं अपनी ज़ात बताने नहीं आया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप आले रसूल का इस कदर हया, इस कदर इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। आप कहने लगे कि हुजूर सबसे पहली बात तो ये है कि मुझसे जो गलती हुई है कि मैं आपके कंधों पर सवार हूँ, आप मुझे माफ़ कर दे और मेरी क़यामत के दिन अपने नाने के दरबार में शफाअत ज़रूर करनी है कि आपका नाना मुझे कबूल फरमा ले। तो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप इल्म के एक बहुत बड़े समुंदर थे। और आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, आपकी किताबें फ़ताह व रज़विया देख लें, कंजुल ईमान शरीफ देख लें, ख़ात्मे नबूवत के ऊपर देख लें, इल्म गैब के ऊपर देख लें, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा के ऊपर देख लें। आपने 1000 कुतब जो तहरीर की है, एक एक किताब की दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिल सकती। आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का जो सलाम पढ़ा जाता है, जिस सलाम को हम ये कहते हैं जुमे के बाद खड़े होकर कि मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, हर एक की ज़ुबान पर यही सलाम है और यही तराना है। और दूसरे लफ्ज़ों में आला हज़रत ने यूँ भी कहा है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़री अपने दरबार अक़दस में कबूल फरमाए और हमें सही मानों में इमाम अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।